Yoga is a treasure, a cultural heritage, and a profound science gifted to the world by Bharat. It represents a divine journey from the self to the true self. As we celebrate International Yoga Day worldwide, we will guide you through everything you need to know about yoga. Hi, I'm Shreyasa Vijay, and you're watching Rhythm. We'll explore how you can start practicing yoga, integrate it into your busy lifestyle, and choose the right yoga practices for you. In this episode, we'll tell you how yoga can heal both your inner and outer self, free you from physical and mental diseases, and understand their sense and proper practice of meditation. The practice of yoga is believed to have started at the very beginning of human civilization. Its origins date back thousands of years, long before any religion or belief systems existed. It is said that it began over 5,000 years ago with the Indus-Saraswati civilization in northern India. In the late 1800s and early 1900s, yoga masters started traveling to the West, gaining many followers. Meanwhile, in 1893, Swami Vivekananda went to Chicago for the Parliament of Religions, where he spoke about yoga and the universality of religion. His inspiring words captivated the audience, and this marked the beginning of yoga's journey beyond India. And then almost 100 years later, in 2014, when the Indian government made conscious efforts to popularize yoga globally, June 21 was declared as International Yoga Day. Today, millions of people around the globe have embraced this practice, reaping benefits for their bodies and their minds. योग Specifically, हमारी पुरातन पारंपरिक that yoga अमूल्य देन है। is a invaluable योग contribution मन of our व शरीर, country, of our विचार tradition. व कर्म, Yoga, संयम our heart, our व उपलब्धि body, की our ideology, एकात्मता our का actions, तथा मानव everything व is a प्रकृति के बीच part of our country. सामंजस्य का And in order मूर्त to, रूप it's, है। it's important that ये we have स्वास्थ्य a coordination व कल्याण का between all these. समग्र दृष्टिकोण And है। this is an important योग perspective for our केवल health and our केवल welfare. व्यायाम भर न It's होकर yoga अपने should आप not be से just an exercise तथा for us, विश्व but व प्रकृति के साथ it should be तादात्म्य को प्राप्त करने का a means माध्यम है। to In today's digital era, there is an abundance of information available on the internet. However, when starting our journey, the first question that comes to mind is, which information is authentic and what is the correct way to do it? This Yoga Day, our team visited the spiritual yoga ashram in Noida and met with yoga experts to bring you insights and knowledge directly from the experts. Let's listen to how to begin our yoga journey. जब से योग दिवस पिछले 10 साल से आया है तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस योग को लेकर के आई। अब उसमें ऑथेंटिक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गूगल पर तो बहुत प्रकार का ज्ञान है, पर उसको समझने के लिए भी हमें कई बार एक कहना चाहिए कि गाइडेंस की भी ज़रूरत है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो हम देख रहे हैं क्या हम वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं, ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी में ही आपको एक कुशल ट्रेनर की या एक कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा होती है। कि सबसे पहला आपके अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें करना है। पहला योग अभ्यास करने के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि आपको ये अपने आप को आश्वस्त करना है कि आज से मैं योग अभ्यास करना चाहता हूँ। तो सबसे अनुरोध करूँगा, आज ये 10वां योग दिवस है, 21 जून को जो होने जा रहा है, तो इस योग दिवस पर आप सभी लोग प्रण करें कि आज से हम अपना योग अभ्यास स्टार्ट करें। Now, if you have started your journey and are wondering what's the correct time to practice yoga, let's listen to our experts' advice. कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो पहली जो चीज होती है कि समय, किस समय पर हम करें। तो उसके लिए सबसे सिंपल है कि आप खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद 2 से ढाई घंटे के बाद आप कोई भी अभ्यास कर सकते हैं।
कुछ स्पेसिफिक अभ्यास है जिनको नहीं करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा और करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। डिनर के बाद थोड़ा सा मुश्किल है, तो डिनर का क्योंकि समय सबका बहुत लेट है एनसीआर या मेट्रो सिटीज में, तो फिर रात के 9 बजे के बाद कोई भी आसन, प्राणायाम या क्रियाओं को करने के लिए वर्जित बताया गया है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस के साथ में हम कोई आसन या नींद के जब समय होने वाला हो तब हमें नहीं करना चाहिए। सुबह के नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद 2.5 घंटे के उपरांत आप कर सकते हैं। लंच के 2 से 2.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। डिनर के बाद यदि करना है तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक अभ्यास है, जैसे योग निद्रा, प्राणायाम का कुछ अभ्यास, तो वो भी आप कर सकते हैं। Yoga is not just about body postures or flexibility or another way of exercising or moving your body. It delves much deeper, fostering a profound connection with your own self. Recognized as a form of mind-body medicine, yoga integrates physical, mental, and spiritual elements to enhance overall health, particularly addressing stress and anxiety-related illnesses. Experts say that breathing exercises in pranayam and meditation known as dhyan play a crucial role in this process. तो जो जैसे मेंटल रिलैक्सेशन की हम बात करें तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे ब्रीथिंग। प्राणायाम है जो आपके ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है। मेडिटेशन है, तो जो ध्यान है बेसिकली वो योग में बहुत एक्सट्रीम या हाई स्टेज होती है। तो यहाँ पर भी मिसकंसेप्शन है कि लोग आंख बंद करके बैठे हैं और वो मान रहे हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो ध्यान नहीं, वो ध्यान की तैयारी हो सकती है, ध्यान नहीं। ध्यान का अर्थ होता है आपको एक निश्चित बिंदु पर अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को एकाग्र करना। मतलब अगर हम शरीर को तीन वेरिएशंस में देखते हैं, तो जैसे शारीरिक शरीर जो दिख रहा है, फिजिकल बॉडी, दूसरा मेंटल बॉडी, तो थर्ड वन है ना सोल, स्पिरिचुअल बॉडी। तो वो तीनों एक निश्चित बिंदु पर एकाग्र हो, उस अवस्था को ध्यान कहा गया। अष्टांग योग के अनुसार ये 7वीं स्टेज आती है। तो 7वीं स्टेज तक पहुंचना तो अपने आप में बहुत मतलब बड़ी स्टेज है। अब ऐसा मान करके अभ्यास ही ना किया जाए, ये भी गलत है। तो हम जो ध्यान के लिए जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक तैयारी है, ध्यान के लिए तैयारी, तो उसको ध्यान नहीं कह सकते। उसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हम प्ले करते हैं, तो उससे कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको श्रिंक कर देता है। अरे गोएंगे ना डीप स्लीप। जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ जो हार्मोन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और आप अपने आप को रिलैक्स या एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो स्थान, एकांत स्थान जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना। पहली चीज, आप अपने बंडर ऑफ थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करना आपके हाथ में है ही। एक्चुअली ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। जब आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका जो, अगर उसको बारीकी से आप देखें तो आप उसी पर अटके हुए हो कि अपने ध्यान को इनवर्ट करें। अभी हमारा ध्यान जो भ्रमित है वो इसलिए है क्योंकि बाहरी चीजों पर है। तो ध्यान एक तरह से आपको उस स्टेज पर लेकर के जाता है जिसमें आपके शरीर की आवश्यकता तो है, मतलब शरीर है ये पता होता है, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ आप स्थिर बैठे। उससे जो ब्रेन में आपका जो मस्तिष्क, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं कि आप का जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है। उससे आपकी डिसीजन टेकिंग पावर अच्छी होती है, उससे आपको जो आपका अग्रेसिवनेस है, जो बहुत जल्दी गुस्सा आना, वो आपको नहीं होगा। मतलब यू कैन बैलेंस in every manner. The beauty of yoga is its accessibility to people of all ages. Each body has unique needs and benefits from specific asanas. However, the question of when to start yoga remains a common concern for many. देखिए, अगर हम योग के हिसाब से देखें तो जो बच्चों के लिए जो एज जो बताई गई है वो बताई है 11 साल। 11 साल से वो अपनी योग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उससे पहले वो थोड़ा बहुत योग आसन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप टिपिकली आसन और प्राणायाम की बात करें तो वो 11 साल के बाद शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले उनको समझ ही नहीं आएगा कि ब्रीदिंग कैसे लेनी है, कब छोड़नी है, कब रोकनी है। वो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है और एकाग्रता भी उस समय नहीं होती बच्चों में। इतने छोटे बच्चे को आप 5 साल के बच्चे को प्राणायाम के लिए बैठाएंगे, वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उस बच्चे का मतलब अटेंशन स्पैन ही बहुत कम है और इसमें योग में तो आपको अटेंशन देना ही पड़ेगा अपना। इसलिए योग के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो 11 साल एज बताई है। 11 साल से आप शुरू कर सकते हैं,
प्राणायाम भी और आसन भी। तो आज तक बहुत सारे जिम के जैसे योगा सेंटर्स भी इस तरह के बन सकते हैं। आज तक योग आसन करने के लिए मशीन इसीलिए नहीं डिजाइन हो पाई है क्योंकि स्पेसिफिक बॉडी के लिए स्पेसिफिक अभ्यास करने से ही उसको लाभ मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यदि शीर्षासन करने की क्षमता रखता हूँ और आप वो क्षमता नहीं रखते तो योग आपके लिए नहीं है। आप यदि 15 साल की आयु में है, आप यदि 90 साल की आयु में है तो आप 90 साल की आयु में भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप 15 साल की आयु में भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन है। 15 साल का बच्चा है उसके लिए एडवांस आसन प्रैक्टिस है, जो 90 साल का व्यक्ति है उनके लिए प्राणायाम, मुद्राएं या कुछ क्रियाएं। तो दोनों का स्वास्थ्य लाभ शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से मिले। तो ये सबसे अच्छी सुंदरता है योग की कि कोई एज बार नहीं है। आप किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को किसी भी आयु वर्ग तक सिखा सकते हैं या कर सकते हैं। माने ऐसा माना गया है कि जन्म के 5 साल के उपरांत और मृत शैया तक आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। For most of us, yoga is conceived as a method of therapy or exercise system which is essentially for the fitness of the body and overall health in general. Although yoga undoubtedly enhances one's physical and mental health, that is just a part. Yoga's main aim is to be in harmony with the universe. It is the technology through which one can align his or her geometry with the cosmic to achieve the highest level of perception and harmony. In the present day, yoga education is an active form of learning which is practiced as courses in yoga institutions, colleges, and universities. Medical professionals also have raised the importance of imbibing yoga in the daily life. Remember that yoga is not a quick fix. It's a journey. Whether you are dealing with cervical pain, managing blood pressure, seeking a better posture, diabetes, or want to cure any other disease like PCOS or PCOD, yoga takes time and commitment. Healing does not happen overnight. The more effort you invest, the more you will benefit. As yoga continues to guide us on a divine journey from the self to the true self, it reminds us that true change takes commitment. In a fast-paced world where stress and lifestyle-related illnesses are common, embracing yoga and a healthy lifestyle can lead to a fuller, healthier life.